हेलो गाइस। ये मेरा एक ट्रायल लेक्चर है जिसमें मैं टेस्ट कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव ऑनलाइन लेक्चर। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस इज it can be recorded free of cost and no need to pay hefty amounts for, like in case of Zoom. So after this video I want feedback from all of you guys. So let's begin. It has chat option also where you can ask your doubts also. Hello guys, are you able to listen me? Are you able to listen my voice? Hello. Hi. Are you able to listen? Just watch. Click on watch video, live video. Yes. Now I think you are able to listen me. Fine. Very nice. Tejas, Swaraj, Shreya, Harsh. Okay. So I am starting with my lecture. The topic is capacitance. Okay. So it will be a good revision for you guys in this short video. So yes, Vedant is also here. Okay, welcome. Faiza, good afternoon. Yes, okay. Join my live lecture. Okay, I am starting with the lecture. The topic is capacitance. Welcome, Parth. Join the live lecture. Okay. So capacitance, you can say, it is simply a conductor with particular shape and dimension used to store. Good afternoon. Good afternoon. Used to store electric charges. Are you guys able to listen me? The new joinees. Currently, I am able to see only 4 students currently logged in. I think they are also watching this live session. Others are able to chat, I guess. Okay. So it is just like a storing charge. Like for example, we have water tank on the top of the building. Suppose this is the water tank. Water tank, and this is the ground level. So below this ground level we have water stored, that is also known as underground water.
underground water. So we need electric pump, right? Or manually we can draw water from the ground and take it using stairs to the water tank and fill the water in that. Okay. So somehow we have to use some mechanism so that water can be drawn from lower level to higher level. So we use electric pump for that, for transferring water from lower level to higher level, right? So water will be stored in that water tank. Similarly, capacitance also. If you have a capacitor, say a conductor, you want to store some charge on that conductor or capacitor. Guys, you can ask your doubts also, okay, via this chat. I think I am able to reply also. Yes. Nidhi, Sambhaj, Harsh, Tejas, Apurva, Shreya, Swaraj, Vedant, Faiza, Parth, Shruti, Sonali, Swaraj. Okay. I think I am not able to reply you. I think you can ask your doubts and I will clear your doubts on this screen itself. Suppose at any point if you have anything, any query. Okay. So I was discussing about capacitance. So to store charge on the conductor, we need battery, right? So battery is behaving like charge pump, behaving like charge pump. So this like this water, because of gravity, we have to do external work in order to take it from lower level to higher level. Guys, feedback also you can give, okay, via this chat. Like is audio is clear or video is clear, something, anything you want to say, you can discuss. So So against electric field, we have to do work to store charge on the capacitor. For example, just consider this spherical conductor. It is initially uncharged. Now, if I put some charge Q on it, small charge Q on it. So what I have to do after this Q, I have to add another charge, right? So let me get inside next page. Now I have charge Q on this conductor. I want to add additional charge dQ on it. So I will have to do some work. Why? Because this dQ, which is positive and Q is also positive, there will be repulsion, right? So Q, which is already stored on the capacitor, Q will repel dQ. सो डी क्यू अपने आप तो नहीं आ पाएगा कंडक्टर में, हमको फोर्सफुली उसको अंदर फिट करना पड़ेगा. जैसे बस होती है ना, पहले से ही बस भीड़ है, खूब गर्दी है, रश है, बहुत पूरी भरी हुई है बस. पैसेंजर को कैसे धक्का देना पड़ता है एक दूसरे को फिट होने के लिए, लोकल ट्रेन का भी यही हाल होता है, ठीक है ना. वैसे कुछ समझ जाओ, यहाँ भी ऐसे ही है. क्यू क्यू विल रेपल डी क्यू, देयर फोर एक्सटर्नल वर्क इज डन external work is done to add further charge dq on capacitor. कैपेसिटर कह लो या कंडक्टर भी कह सकते हैं, और कंडक्टर, ठीक है. तो जब एक्सटर्नल वर्क हुआ है, किस वजह से हुआ है? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट.
अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ गाइस, समझ में आ रहा है ना? आवाज़ आ रही है? चैट नहीं कर रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। एंड ट्रायल लेक्चर है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये कभी भी देख सकते हो फिर से। हाँ, नो नीड टू वरी। सो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही एक्सटर्नल वर्क फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस गेट्स स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूं। एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू। एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है जो पोटेंशियल को भी डिफाइन करता है, कैपेसिटेंस को भी डिफाइन करता है। ये है वो फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू सी वी। एक्चुअली में होता क्या है, जो कैपेसिटेंस है C, उसको हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं, कैपेसिटेंस, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, Q बाय V, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल स्टोर इन कंडक्टर। कंडक्टर की सरफेस में ही चार्ज होता है, ठीक है। सो यहाँ से ये फॉर्मूले से हम देख सकते हैं पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से जे डब्ल्यू आ गया वी डी क्यू, और वी को हम रख सकते हैं क्यू बाय सी। तो स्मॉल वर्क डन आ गया। देखो मैंने अभी लास्ट पेज में बताया था, जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है डी क्यू को ऐड करने में। सो मुझे टोटल वर्क चाहिए अब। सो टोटल एक्सटर्नल वर्क, टोटल एक्सटर्नल वर्क टू स्टोर चार्ज कैपिटल Q। अब मुझे कैपिटल Q तक उसमें चार्ज लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 0 टू W डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q बाय C डी क्यू, और यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 टू कैपिटल Q। अब Q डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, Q स्क्वायर बाय 2, और यहाँ से हमने लिमिट रख दिया 0 टू Q। सो 1 बाय 2C इंटू Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और यहाँ आ गया W माइनस 0। सो टोटल वर्क डन आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये हमारा टोटल वर्क डन आ गया। ओके, सो गाइस नो नीड टू वरी, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। So the biggest advantage of this app is that whatever I am saying, whatever I am writing, it will be recorded, and it is very handy. Easily I can take any question from the pictures folder, and at the same time I will solve it, and at the same time you can chat also. नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ। इस फॉर्मूले के आगे थोड़ा सा और मैं पढ़ाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। EIEEE में आए हैं ताकि सभी को थोड़ा इंटरेस्ट भी आए क्वेश्चंस करने में। नॉर्मली मैं ऐसा करता भी हूँ, थोड़ा सा पढ़ाता हूँ फिर क्वेश्चन कराता हूँ। देखो, तो जो एक्सटर्नल वर्क डन आया है Q स्क्वायर बाय 2C, ये क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज Q जब हम कैपेसिटर को देते हैं तो हमको कितना वर्क करना पड़ा, बेसिकली बैटरी है ना, बैटरी को कितना वर्क करना पड़ा, और यही फिर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब इनिशियली तो कैपेसिटर अनचार्ज है, तो U इनिशियल तो हम 0 ले लेंगे। वाई, बिकॉज इनिशियली कैपेसिटर इज
अनचार्ज्ड, फाइन। अच्छा, क्यू को हम रख सकते हैं सी वी, फाइनल पोटेंशियल है वी, वी इज द फाइनल पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। सो जो यू का फॉर्मूला आया, यू फाइनल को हम यू मान लेते हैं, यू फाइनल इज ओके। सो यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और क्यू को रख दिया सी स्क्वायर वी स्क्वायर। सो सी सी कैंसिल हो जाएगा, सो सी वी स्क्वायर बाय टू सी, सॉरी एक से कैंसिल हो गया, हाँ सी स्क्वायर सॉरी सी वी स्क्वायर बाय टू, यहाँ पर इरेजर भी है, ये इरेजर से मिट गया, सी वी स्क्वायर बाई टू। और फर्दर देखो क्यू, सी वी को हम क्यू रख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला और आ गया क्यू वी बाय टू। तो ये फॉर्मूले आ गए पोटेंशियल एनर्जी के, सी वी स्क्वायर बाय टू, क्यू वी बाय टू, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। नेक्स्ट पेज चलते हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आई गेस, मतलब टेक्निकली, वैसे तो ये टॉपिक में सब एक्सपर्ट हो गए होंगे अभी तक, कैपेसिटर है ना, टेस्ट भी हो चुके हैं हमारे। टेक्निकली मतलब साउंड में कुछ लैगिंग ऐसा कुछ अगर आया है तो मुझे चैट के थ्रू बता सकते हो, या कुछ फास्ट लग रहा है या स्लो जा रहा है लेक्चर, एनीथिंग वट एवर फीडबैक यू वांट टू गिव यू कैन से। सो अभी देखो मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है, बताना कि समझ आया कि नहीं। देखो इसमें मैं डायरेक्ट पिक्चर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पहले से ही मैंने स्टोर करके रखे हैं क्वेश्चंस, AIEEE में आए हैं जो। ओके, लेट अस टेक दिस फर्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये AIEEE में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं नॉर्मली क्लास में डिस्कस करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसा अरेंज करना होता है। हाँ, आई होप कि ये सभी को दिख रहा होगा। चलो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इफ n कैपेसिटर्स इन पैरेलल कनेक्टेड टू V वोल्ट सोर्स, एक बैटरी लिया हमने, इसके साथ हमने n कैपेसिटर्स पैरेलल में लगा दिए, ये एक कैपेसिटर हो गया, ये दो कैपेसिटर, ऐसे करते करते टोटल n कैपेसिटर्स लगा दिए, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो कोई बता सकता है आंसर? ठीक है, मैं 30 सेकेंड्स देता हूँ, चैट के थ्रू मुझे आंसर बता दो। थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है, आई थिंक इसमें ऑडियो नहीं चल सकता है। इफ यू वांट यू कैन आंसर, अदरवाइज इट इज फाइन, क्योंकि ये ट्रायल लेक्चर है, डोंट वरी। दे दो, कोई आंसर बता दे तो अच्छा है, अदरवाइज मैं तो कर ही रहा हूँ सॉल्व तो। डी आएगा, अच्छा ठीक है, ओके, वेदांत का आंसर आ गया डी, ठीक है, गुड। तो सबसे पहले देखो सी इक्विवेलेंट निकाल लो, सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? हाँ, हर्ष का आंसर डी आ गया, ओके। तो सी इक्विवेलेंट देखो सी बाय एन हो जाएगा, मालूम है ना, यहाँ से आता है 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 प्लस 1 बाय C4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते 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 1 बाय Cn, ये हो जाएगा n बाय C, सो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C बाय n, ओके।
और फॉर्मूला लगा देंगे पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी से है, सो हाफ सी वी स्क्वायर, और सी की जगह रखेंगे इक्विवेलेंट हाफ सी बाय एन वी स्क्वायर। ओके, यहाँ से हमारा आंसर आ गया डी। क्लियर? तो अभी कुछ डाउट है तो पूछ लो, मैं फिर नया क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, इसमें टाइम तो कुछ अलग से नहीं जाता है और रिकॉर्ड भी हो रहा है, सो यू कैन वॉच इट एनी टाइम एज यू वांट। ओके, वनीता का भी आंसर आ गया डी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आई होप कि कहीं लैगिंग नहीं आ रहा है वॉइस में, है ना? अगर आ रहा है तो मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ अपने, देखो इंसर्ट पेज। मैं पहले से ही स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ। क्वेश्चन 1 हो गया। हाँ, क्वेश्चन 2 करते हैं। चलो क्वेश्चन 2 करते हैं। चलो 20 सेकेंड्स में इसका आंसर दो, क्या आएगा? ए बी सी डी बोलो। कैपेसिटेंस निकालना है स्फेरिकल कैपेसिटर का, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, R बाई के भी कह सकते हैं। 1 मीटर रेडियस है, सो 1 मीटर बाय 9 इंटू 10⁻⁹। तो देख सकते हो ये आएगा 1/9 इंटू 10⁻⁻9। ओके, हर्ष का आंसर आया ए। ओके ठीक है, देखते हैं। और 1/9 को हम लिख सकते हैं 0.11, ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻10 फेरेड। क्लियर? देख लो, थोड़ा सा और देख लो, फिर मैं नया क्वेश्चन ले रहा हूँ। और मुझे फीडबैक देते जाओ अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है सुनने में, या वॉइस लैगिंग, वीडियो लैगिंग, कहीं भी एनीथिंग, एनी टेक्निकल इशू, आई विल डेफिनेटली फाइंड सम सॉल्यूशन फॉर दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये था, कौन सा क्वेश्चन था ये? सेकंड था ये। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ओके ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किए हैं, तो बताओ जरा क्या आंसर है इसका। अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस is introduced between the plates of a capacitor. The capacitance of the capacitor will, बोलो ABCD क्या आएगा? पहले हमने डिस्कस किया है, आई होप सभी को मालूम होगा इसका आंसर। चैट में बता दो क्या आंसर है। डी। अच्छा ठीक है, ओके देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और कोई आंसर बता रहा है क्या? बताओ जल्दी बताओ, कोई आंसर है तो। मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा बी आ रहा है, ओके डी। अच्छा ठीक है, निधि का बी है, मानसी, मनीष का डी। ओके
सृष्टि ने डी बोला, हर्ष ने, अच्छा हर्ष का पुराना क्वेश्चन है, चलिए डी बी डी, ओके ओके ठीक है। देखो जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस है स्मॉल डी, फाइन। बीच में मैंने कहीं पर टी विड्थ का एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, टी विड्थ है डाइलेक्ट्रिक का, ओके। वेदांत का, निधि का भी बी आ गया, ओके। सृष्टि का भी बी आ रहा है, ओके। चलो तो स्वराज का भी आ गया बी, ओके। तो इसमें जो कैपेसिटेंस है, क्या होता है फॉर्मूला, मालूम होगा सभी को फॉर्मूला कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये होता है ना फॉर्मूला। सो एप्सिलॉन आर क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। तो ये एल्यूमिनियम की है, जो डाइलेक्ट्रिक है ना एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, इट्स अ कंडक्टर। सो बोलो कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, कोई बताएगा? कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है कंडक्टर की? बड़ा टाइम लगा रहे हो, मालूम है सभी को, इन्फिनिटी होता है, राइट? हाँ इन्फिनिटी होता है, ओके। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर क्या आ गया, 1 बाय एप्सिलॉन आर हो गया 0, सो देख सकते हो इनफाइनाइट, यस करेक्ट। सो सी डैश आ गया, सी डैश आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 0, ठीक है। थोड़ा सा मैं रब इच्छा यहाँ लिख देता हूँ, चलो ओके। तो सी डैश आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, थिन, कहाँ लिखा, शीट, शीट का मतलब क्या होता है, थिन है ये, ठीक है, थिन शीट है, इसका मतलब टी नेग्लिजिबल होगा, टी इज ऑलमोस्ट 0। तो ये कितना होएगा, सी डैश बोलो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाएगा, समझ आया? तो ये तो सेम था जो पहले था, राइट? तो अनचेंज्ड होगा, सो इट विल रिमेन सेम, अनचेंज, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप देख लो कैसे आएगा इसका आंसर। शुरुआत हमने यहाँ से करी, ये फॉर्मूले से, देखो कैसे हम सॉल्यूशन तक पहुंचे, ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं ना, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन है फिलहाल मेरे पास, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। चलो 4th क्वेश्चन ले रहा हूं, पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, इसको अपलोड कर दूंगा, यू कैन वॉच इट एनी टाइम एज वेन एवर यू विश। शाम को देखना है शाम को देख लो, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, ठीक है, लंच के बाद देखना है, डिनर के पहले बाद में, जब जैसे इच्छा हो यू कैन वॉच इट एनी टाइम। चलो नेक्स्ट, आई थिंक 3rd क्वेश्चन हो गया था, अब ये 4th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, ओके। 30 सेकेंड्स का टाइम मैं दे रहा हूँ, सॉल्व करो, क्या आएगा इसका। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, AIEEE में आए थे, जेई मेन बोल सकते हो उसको, और एम्स भी बोल सकते हो, लेबर उसका बहुत अच्छा रहता था, नीट में भी आ सकता है। अभी मैं धीरे धीरे एडवांस के क्वेश्चन लेना शुरू करूंगा, ठीक है। वो एक्सक्लूसिवली जेई के लिए रहेगा, बट नीट के स्टूडेंट्स भी अटेंड कर सकते हैं, कंपल्सन नहीं रहेगा नीट वालों के लिए, बट जेई को रहेगा वो, बट नीट वाले अटेंड कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट भी है मेरे पास तैयार, टेस्ट सीरीज भी हैं, सब कुछ है अब रेडी। तो अब हम लाइव सेशन किया करेंगे एज मच एज वी कैन, और पूरा वो रिकॉर्ड भी होता रहेगा। मैं इसी ऐप से क्लास लूँगा, और ये जो वीडियो बनेगा ना मेरे टैबलेट में स्टोर होगा,
वो वीडियो को मैं फिर स्टोर करूँगा, अपलोड करूँगा यूट्यूब में। और ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया एक्चुअली। पहले मैं कैमरे से वीडियो शूट करता था, बहुत बड़ा फाइल बन जाता था, वो दो जीबी का बन जाता था फाइल, तो बहुत टाइम लेता था वो अपलोड होने में। DRI, अच्छा ठीक है। वर्क डन पूछा है, ठीक है ना। तो अभी हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अच्छा मैं देख लेता हूँ कौन कौन आंसर दिया है। ओके, सृष्टि, हर्ष, ओके, सबके एक ही आंसर आ रहे हैं ना, डी डी, हाँ सभी के एक आंसर आ रहे हैं। ओके, so make it quite interactive so that I will also get to know whether we are facing any issue or with with this app or not। डी आ रहा है, अच्छा वेदांत पार्थ का भी आंसर आ गया। चलो यू एफ माइनस यू आई, यू एफ तो यू एफ माइनस जीरो, इनिशियली कोई चार्ज होता नहीं है तो तब की पोटेंशियल हम लेते हैं जीरो, और यू फाइनल हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, जो चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में वही मैं यूज़ करूँगा। क्यू और सी दिया हुआ है, सो हाफ सी बी स्क्वायर लगाने का जरूरत नहीं है। सो हाफ इंटू क्यू स्क्वायर 8 इंटू 10⁻18 का होल स्क्वायर बाय सी, 100 इंटू 10⁻, माइक्रो है तो -6 आ जाएगा। सो दैट इज 64/2 इंटू 10⁻36 ऊपर आया और नीचे आया 10⁻4। सो 32 इंटू 10⁻32 डी आ गया। चलो सभी का आंसर सही, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्चुअली दो फोटो में है ये। नाउ दिस इज कंप्लीटेड। चलो गाइस, आंसर दिस क्वेश्चन। 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करो। ओके, बी आ रहा है, पार्थ ने आंसर दिया। ओके, ओके, सी आ रहा है। चलो देखते हैं। A parallel plate capacitor is made by stacking n equally spaced plates connected alternatively. If the capacitance between any two adjacent plates is C, then the resultant capacitance is। डायग्राम बना लो, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में अच्छा है कि हम डायग्राम बना लें। एन इक्वली स्पेस प्लेट, चलो ऐसी प्लेट्स रखी हुई हैं। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, दो प्लेट का पहले निकाल देते हैं, ठीक है। चलो दो प्लेट का मान लेते हैं, एक कैपेसिटर कैसे बनेगा। तो ये सी है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब
एन रखी हुई है, देखो ध्यान से। अच्छा चलो मैं 3 प्लेट लेता हूँ, ठीक है, 3 प्लेट का बता देता हूँ। चलो 3 प्लेट, अच्छा देखो 3 प्लेट से कितना कैपेसिटर बनेंगे, सोच के बताओ। हाउ मेनी कैपेसिटर्स यूजिंग 3 प्लेट्स? 3 प्लेट का यूज करके कितने कैपेसिटर बने? 2 बने ना, और सीरीज में आ रहे हैं, राइट? हाँ, 2 कैपेसिटर बनेंगे 3 प्लेट से, और ये स्टैकिंग एंड इक्वली स्पेस्ड प्लेट्स कनेक्टेड ऑल्टरनेटिवली। अच्छा ऑल्टरनेटिवली है, ओके ओके। इसका मतलब ऐसा जुड़ा हुआ है, तब ये पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम आ जाएगा। जैसे कि इसका पोटेंशियल V1 है तो इसका भी V1 आएगा, और ये V2 हो जाएगा। तो ये किस में आए बोलो? ये तो 2 कैपेसिटर बनेंगे, किस में बनेंगे, सीरीज या पैरेलल बोलो? सीरीज और पैरेलल, बता सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ जाएगा, देखो दोनों का। ऐसा मान लो, चलो एक कैपेसिटर ये बन गया, एक कैपेसिटर ये बन गया, ये सेकंड प्लेट आ गई, और यहाँ से इस तरह से ये कनेक्टेड है। एक एक तार यहाँ निकला है, एक तार यहाँ निकला है, ऐसा कुछ सिचुएशन है। हाँ पैरेलल में आएगा, वेरी गुड वेरी गुड, पैरेलल में आएगा। तो ऐसा मैं रब कर देता हूँ, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, ठीक है। सो 3 प्लेट्स हैं, 3 प्लेट्स का क्या आ जाएगा देखो, 2C, ठीक है। 4 प्लेट ले लेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लेट्स लेके देखते हैं। 1 प्लेट हो गई, 2 प्लेट हो गया, 3 प्लेट, 4 प्लेट, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली ऐसा ज्वाइन किया, देखो ध्यान से, ऐसा इस तरह से लाइक दिस। फिर यहाँ से एक तार निकल गया, यहाँ से एक तार निकल गया, तार मतलब वायर है ना, कनेक्टिंग वायर। तो यहाँ से देख सकते हो ये V1 है, तो ये भी V1 हो जाएगा, ये वाला प्लेट का V2 है। एक सेकंड, ये V2 है, तो ये भी V2 हो जाएगा। तो ये किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। फिर से कैपेसिटर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 3C, फाइन। तो अब यहाँ n प्लेट्स हैं, तो n प्लेट्स के केस में क्या हो जाएगा फिर आंसर, n प्लेट्स हैं, देखो 4 प्लेट का 3C आ रहा है, तो n प्लेट्स का जाएगा n-1C, क्लियर। तो आंसर C हो गया इसका, समझ आया? मैं चेक कर लेता हूँ किस किस का आंसर आया था। C, निधि, सृष्टि, ओके, वेदांत, हर्ष, गुड, ओके। ओके गाइस, चलो 5th हो गया। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? चलो मैं 6th ले रहा हूँ अब, 6th क्वेश्चन। पहले पेज चेंज कर देता हूँ। 6th क्वेश्चन के लिए फोटो, 6th कहाँ है, 1 2 3 4, ये है 6। ओके चलो ट्राई करो, थोड़ा इसको मैं मैग्नीफाई कर देता हूँ। हो सकता है ये क्वेश्चन हम फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो, या हो सकता है पहले किए भी हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है देख के, शायद किया हूँ, क्योंकि ये जिस बुक से मैं लिया हूँ वो नॉर्मली मैं DPP में डिस्कस किया हूँ पूरा क्वेश्चन। करो, ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है, 30 सेकेंड्स में आंसर दो। अब इसमें देखो 2 चैप्टर्स,
दो टॉपिक मिक्स कर दिया है, एक हीट थर्मल, जो कौन सा टॉपिक है, कैलोरीमेट्री, राइट, कैलोरीमेट्री को मिक्स कर दिया है कैपेसिटेंस से। बोलो क्या आंसर आ सकता है इसका, कर रहे हो ट्राई। फुल्ली चार्ज कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C. It is discharged through a small coil of resistance wire embedded in a thermally insulated block of specific heat S, mass M, rise in temperature delta T। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोलो आंसर क्या आएगा। आई थिंक आप ही क्या होगा सभी का आंसर, बोलो क्या आंसर है इसका। ओके, हर्ष ने बोला बी। अच्छा, बी। ओके, तो देखो ये एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाएगा, ठीक है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। बहुत ही आसान से कंसेप्ट है, आई थिंक फिफ्थ क्लास में पढ़ते हैं हम सबसे पहले एनर्जी के बारे में, है ना। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बहुत ही आसान सा। इसमें क्या हो रहा है मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल energy of capacitor goes into heat, goes into heat। तो क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV², और हीट एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़े हैं कैलोरीमेट्री में, MS डेल्टा T, ठीक है। So if temperature of the block is raised by delta T, potential difference पूछा, ठीक है। So V² आ गया 2ms डेल्टा T by C। So V हो जाएगा √2ms डेल्टा T by C। ओके, B आ गया, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। चलो 7th क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा ही करूंगा, मुझे अगर डीपीपी लेनी है तो पहले से ही क्वेश्चन तैयार रहेंगे, सो दैट हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और डोंट वरी, मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो लाइव लेक्चर लेना और रिकॉर्ड भी करना। इस ऐप के थ्रू आई होप कि मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा एंड यू विल ऑल्सो बेनिफिट। चलो 7th क्वेश्चन करो, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ उसको। करो ट्राई, 30 सेकेंड्स है, सॉल्व करो। अगर कोई वॉइस में लैगिंग आ रही है, वीडियो में लैगिंग आ रही है तो मुझे बताओ, ओके। आई विल टेल यू सॉल्यूशन फॉर दैट। आया कुछ आंसर? Battery is used to charge a parallel plate capacitor till the potential difference between the plates becomes equal to the electromotive force of the battery. The ratio of the energy stored in the capacitor and the work done by the battery will be, okay,
ओके, ये हमने डिस्कस किया है पहले ही, है ना। टोटल वर्क डन बाय बैटरी वो होता है 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। कैसे आता है इसका मैं बता देता हूँ, देखो शॉर्ट में, ठीक है। वैसे तुमको पूछना चाहिए था, सभी को मालूम होगा, वैसे मैंने डिस्कस किया था। देखो, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस बैटरी से पास किया है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है बैटरी के अक्रॉस, जो कि ईएमएफ भी होता है। इसको मैं भी कह देता हूँ, ठीक है, ईएमएफ भी है। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू ईएमएफ, तो वर्क डन आ जाएगा Q इंटू वी। ये होता है वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय बैटरी। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये कितना होता है, क्यू वी बाय टू। क्लियर, तो यहाँ से आ गया रेशियो, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर बाय वर्क डन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्क डन आ गया 1/2 आ गया। वेरी गुड, ए ऑप्शन, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़े, 8th क्वेश्चन। एट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ गया, आई थिंक ये है क्वेश्चन। नया पेज बनाना पड़ेगा। ओके, 8th क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड। चलो, ये है क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। आंसर, आंसर दिस क्वेश्चन। And one more advantage I got, that free of cost we can take any duration of lecture. Okay, 40 minutes तो उसमें होता था Zoom में, अभी देखो 48 मिनट्स हो गए। कोई हमको वो नहीं मिला, क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन। नो नीड टू ज्वाइन अगेन, ठीक है। हाँ, कर रहे हो क्वेश्चन, बोलो कौन कौन है, एक बार नाम पढ़ लेता हूँ सबका। नाम तो आता है वैसे, नाम देख सकते हैं कैसे। I think those who will chat with me only I will be able to see। मुझे पूरी लिस्ट नहीं मिल रही है यहाँ से, बट डेफिनेटली मैं चेक कर सकता हूँ, डोंट वरी, मेरे पास दूसरे तरीके हैं, ठीक है। चलो, नो इशू। चलो, 8th क्वेश्चन। आया किसी का आंसर? ए, ओके, अच्छा ठीक है, ए आ रहा है, निधि का ए आ गया, अच्छा वेदांत का भी ए आ रहा है, हर्ष का भी ए आ रहा है, ओके। चलो देखता हूँ। पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K between the plates has a capacity C and is charged to potential V। ठीक है, डायग्राम बना देता हूँ। चलो, एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसमें पोटेंशियल अभी कितना है, V, और बैटरी से अभी ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू बैटरी।
कहीं लिखा है क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बिटवीन द प्लेट प्लस कैपेसिटी सी चार्ज टू पोटेंशियल वी। ठीक है, बैटरी से लगाया होगा तो ही ना चार्ज हुआ, तो ये बैटरी से चार्ज हो गया। Dielectric slab is slowly removed from between the plates and then reinserted. The net work done by the system in this process. अब यहाँ सिस्टम का मतलब क्या हो सकता है? सिस्टम का मतलब यहाँ क्या हो सकता है? एक्सटर्नल एजेंट भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकता है। बैटरी देखो ऐसी चीज है, उसको जैसे ही पता चला ना कि कैपेसिटेंस बढ़ गया है तो एक्स्ट्रा चार्ज वो सप्लाई कर देगा, राइट? और जैसे ही पता चला बैटरी को कि कैपेसिटेंस कम हो गया है तो कैपेसिटर से वो चार्ज खींच लेता है वापस। तो वही सोचना है कि वर्क डन का मतलब क्या है यहाँ पर। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज स्लोली रिमूव्ड फ्रॉम between the plates and then reinserted। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, U1 निकाल लेते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? हाफ CV स्क्वायर। अब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को स्लोली रिमूव किया सो U2 हो जाएगा कैपेसिटेंस 1/k टाइम्स हो जाएगा, तो नया पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल अगर U है तो U2 कितना आ गया? U/k। ठीक है, अच्छा फिर से उसको इंसर्ट भी किया है, री इंसर्ट कर दिया, तो U3 कितना हो जाएगा? U3 बोलो। हाँ, फिर से वही हो जाएगा ना, हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। सो नेट वर्क डन पूछा है तो मेरे ख्याल से A आना चाहिए, बिल्कुल सही। U3 माइनस U1 अगर निकाला जाए तो 0 होता है। सो एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू 0 आएगा। इसको थोड़ा मैं डायग्राम से भी समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, ध्यान से देखना ऑल ऑफ यू। देखो जैसे कि जब मैंने बैटरी से इस तरह से कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है ना, कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो है ना, पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसा, और राइट वाली प्लेट में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर देखो ध्यान से, एक डाइलेक्ट्रिक है। तो डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस चार्ज आए होंगे। इंड्यूस चार्ज कैसे दिखेंगे? ध्यान से देखो, डाइलेक्ट्रिक के लेफ्ट साइड नेगेटिव चार्ज आएगा और डाइलेक्ट्रिक के राइट साइड, राइट वाली फेस में पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट? अभी मुझे ध्यान से सोच के बताओ, अगर अब मैं ये डाइलेक्ट्रिक को ऊपर खींचना चाहूं, पुल करना चाहूं, ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसे मैं ऊपर खींच रहा हूं, तो मैं आसानी से खींच पाऊंगा क्या? मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा ना। क्यों लगाना पड़ेगा? बिकॉज ये इनके बीच अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो मैं डाइलेक्ट्रिक को ऊपर खींचूंगा, डाइलेक्ट्रिक को ऊपर खींचूंगा तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा ना। जैसे स्टिक हो गया, जैसे डाइलेक्ट्रिक पॉजिटिव नेगेटिव खींच रहे हैं आपस में, तो मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, राइट? मुझे पॉजिटिव एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, मुझे पॉजिटिव एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और वापस से अब देखो, ध्यान से देखना, अभी बाहर आ चुका है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है? तो धीरे धीरे क्या होगा? वापस से मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ अगेन, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाएंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा। तो अट्रैक्शन की वजह से अपने आप खींच लेगा उसको, है ना, अपने आप खुद ब खुद इट विल बी अट्रैक्टेड बाय इटसेल्फ। सो नो नीड टू डू एक्सटर्नल वर्क, इट विल बी पुल्ड, ठीक है ना। ये कैपेसिटर उसको खींच लेगा।
तो अब मुझे नेगेटिव वर्क करना पड़ा, ध्यान से देखो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्लोली, क्वेश्चन में मेंशन्ड है स्लोली, ठीक है ना। तो जब मैं जैसे पेन को मैं स्लोली स्लोली ऊपर ले गया, फिर स्लोली स्लोली नीचे ले आया, है ना, 1 मीटर ऊपर ले गया, 1 मीटर नीचे ले आया, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ मेरा, 0, राइट। जब मैं ऊपर ला रहा था तो पॉजिटिव वर्क किया मैंने, जब नीचे लाया तो नेगेटिव वर्क किया। सो दैट इज वाई इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, फिर हम वाइंड अप करेंगे और मैं सभी का एक रिव्यू ले लूंगा, फीडबैक लूंगा, सभी अपना फीडबैक देना। इफ एवरीथिंग गोज वेल वी विल कंटिन्यू विथ दिस ऐप फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। चलो लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 9th क्वेश्चन। अच्छा पेज, नया पेज लेना पड़ता है पहले। लास्ट क्वेश्चन, ओके गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, करो, सॉल्व करो। टू 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम ले लो, मुझे आंसर बताओ। अब मैं एक चीज़ और कहूँगा, अब सबको लगने लगा होगा कि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, हम कभी भी देख सकते हैं, बट स्टिल आई विल टेल यू कि लाइव अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सीरियसनेस होती है वो होना चाहिए। अभी देखो, मैं सबके डाउट भी कभी भी पूछ सकते हो, है ना, चैट के थ्रू, मैं तुरंत उसको क्लियर भी कर सकता हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर में ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। सो लाइव में जितना हम डाउट डिस्कस, मतलब रियल टाइम में इंटरेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्डेड में नहीं कर सकते हैं। रिकॉर्डेड विल बी एडेड एडवांटेज व्हेन यू रिवाइज दीज टॉपिक्स आफ्टर से जनवरी फरवरी, ठीक है ना, जब हमारा सिलेबस हो चुका रहेगा तब तक, तो उस समय रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे सकते हो। बट लाइव भी अटेंड करना, ठीक है ना, ये मेरे कहने का मतलब है। अच्छा चलो, आंसर आया, डी आ रहा है, ओके। और आंसर बोलो, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर दें। पारस का सी आ गया, निधि का डी आ गया, ओके। चलो और बोलो आंसर। नीट में आ सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है, AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं अलग से एडवांस के भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसमें 11th क्लास से हम शुरू करेंगे। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड, स्पेस बिटवीन इट्स प्लेट इज d। The space between the plate is now filled with 2 dielectrics। चलो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लो, 2 डाइलेक्ट्रिक हैं, वन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, थिकनेस d/3, इस तरह से रखे हुए हैं। देखो ये एक डाइलेक्ट्रिक हो गया, d/3 है, और दूसरा क्या हो जाएगा, 2d/3। इसका K1 है 3, K2 है 6, दोनों सीरीज में आ गए, देख सकते हो 2 कैपेसिटेंस बने हैं, सीरीज में है ये, ठीक है। C1 कितना हो जाएगा बोलो, C1 हो जाएगा 3,
फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूँ, देखो ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ। सो ये हो जाएगा C1 हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाई 3, और C2 क्या होगा, K2 की वैल्यू क्या है 6 है, ओके। हाँ C2 हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2D बाय 3, ध्यान से देखो ये बन गया 9 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, इसको मैं कह सकता हूँ 9C, ठीक है। और C2 क्या हो रहा है 18 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये हो गया 9C, ठीक है। 9C और 9C सीरीज में आ गए, तो 4.5C हो जाएगा, और 4.5C C की वैल्यू रख दो, C है 9, तो 4.5 इंटू 9 कितना होता है, 4.5 इंटू 9 पिको फैराड। इसको सॉल्व कर लो, 9 इंटू 5 40.5 आ गया, ठीक है। हर्ष का सही हुआ है, पारस, सृष्टि, निधि, वेदांत का भी सही है, ओके वेरी गुड वेरी गुड, पारस, निधि, ओके हर्ष। ओके थैंक यू सो मच गाइस दिस ट्रायल लेक्चर का मुझे फीडबैक देना, ठीक है। और ये मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब में अपलोड करूंगा, उसका लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है, और उसमें प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ओके। अच्छा अब मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है क्या इस ऐप के थ्रू? अगर हुई है तो बताना, अगर नहीं बताओगे तो मैं मान लूंगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं कल से फिर इसी में क्लास लेना शुरू करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर। Okay, so now I am winding up. Okay, take care, bye bye, thank you. बाकी फिर मैं चैट व्हाट्सएप में अपडेट कर दूंगा। 1 घंटा हो गया पूरा, 1 घंटा 2 मिनट का लेक्चर था ये, स्टॉप कर रहा हूँ, बाय बाय, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। हाँ ओके ओके, तो कल 6 o'clock पे, ठीक है, 6 o'clock पर 6 AM सेम ऐप से हम क्लास लेंगे। बाय, थैंक यू।